everything in the world, if it is in movement, any kind of movement, so it is said to be that body is in motion. तो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर मोशन से ही है, ठीक है। और आज हम करेंगे द वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ एक्चुअली देयर इन द चैप्टर 1 ऑफ physics for class 9, that is equations of motion. So with this, your honey ma'am is welcome back in my own channel, and that is what today we are going to explain equations of motion. I have already told you equation of motion एक ऐसा टॉपिक है ना जो बच्चों को इतना डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें ग्राफ है, एल्जेब्रिक मेथड है, तो हर तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको बोलूँगी कि एक भी सेकंड इस वीडियो का आप मिस मत करिएगा क्योंकि आप इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर मी एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ये रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ और टाइम के साथ। मतलब you are going to discuss the letters I am going to explain you, that is S. What is that? S, A, T, V, where V also will be initial or final velocity, A for acceleration, T for time and S for displacement or distance of a body. ठीक है, तो motion of an object that flow that can follow many different paths, and here we will focus on the motion which will be definitely in a straight line in one dimension only. So we use the positive and negative values both for this displacement, velocity and acceleration, where negative quantities are in opposite direction and positive will be opposite to the direction of the positive quantities. ठीक है, here if there is no acceleration it means we have the formula. कोई acceleration नहीं हुआ अगर तो कौन सा formula होता है, S is equals to Vt, where S is the displacement, V is constant here, velocity, okay, no displacement mean velocity will be, no acceleration mean velocity is constant here, then over the time T, ठीक है, which the motion मतलब time T over the time T which the motion occurred, okay. Now this is just the special case where A is equals to 0. जब A is equals to 0 होगा then only this case will occur, okay. Generally क्या होगा कि most general equation for constant accelerations are given below, which we will definitely discuss over here, ठीक है। So for motion with the constant acceleration A, initial velocity will be u and final velocity will be v, ठीक है। तो the table given below is all about the initial positions and final positions, velocities are there or not, initial, what is final, what will be the displacement of an object, everything we are going to discuss through the equations of motion, ठीक है, which has been explained here, and that equations derivation will be explained here like in algebraic method or in graphical method and as well in calculus method. So calculus method we will not discuss here because here it is differentiation and integration which is not in your syllabus, so that part I will leave, ठीक है। But two most important parts, that is graphical method and algebraic method, I am definitely going to explain you, and I hope कि ये एक्सप्लेन जो भी मैं करूँगी that will be definitely clear into your minds, ठीक है। If there will be doubt, please do ask and comment in the chat box. I will be definitely there to sort out your doubts. Got it? So let's start. What are the variables we are going to explain? We are going to use is variable velocity, displacement with positive acceleration, displacement with initial and final velocities, and velocity squared. These are the variables we are going to use here, and the equation will be, first equation is V is equals to u plus at, second equation is S is equals to ut plus half at square, and third equation is V square is equals to u square plus 2as, ठीक है। And one more important thing, the displacement knowing initial and final velocities is like this, S is equals to half u plus a v bracket में, and that will be multiplied by t. So here we are going to discuss this session, and this is the combination of very best combination of physics and maths, and because here is graph is here, because calculations are here, because here we are going to take the values which are going to be taken as 0 or something else or positive or negative. So that is why I am telling you that this is the best combination of physics and maths, and I hope that you are not going to miss a single moment from this video. Okay, so this part gonna be very interesting for you if you will be staying with us till the end of the session. Now the first is derivation of the first equation of motion by algebraic method. What is this?
वी नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब से साइंस आया और एक्सेलरेशन आया होगा 8th में भी माइट बी, change in velocity upon time is equals to acceleration. What do you mean by change in velocity? Initially the velocity of the body is something else, and finally you are going to see the different velocities when you are running the cars, when you are running the bikes, when you are running a cycle, when you are even moving moving on the road. तो मतलब initially the velocity of the body is something else and finally it could reach to something else, ठीक है, stage. So this is known as initial and final velocities. So if there is a change in velocity over the time, the ratio of this part is known as acceleration. Got it? So it mathematically it is represented as this: a is equals to v minus u y, v minus u y not u minus v. इनिशियल से फाइनल माइनस नहीं होता है, फाइनल से इनिशियल माइनस होता है, तब आप फाइनली पता करते हो कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, ठीक है। तो v डिनोट्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी, u डिनोट्स फॉर द इनिशियल वेलोसिटी एंड t ओवर द टाइम। गॉट इट? नाउ हियर चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू a, ठीक है। ये कर दिया आपने a। अब आप रीअरेंज करोगे इसको, तो आप कैसे करोगे ये आप देखिए। v मैंने कहा a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब आप इसको रीअरेंज करो, मतलब यहाँ ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और अगर आप u को भी ट्रांसपोज कर दोगे तो v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, u प्लस ए टी। और यही तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं? आ गया आपका आंसर। किससे? एल्जेब्रिक मेथड से। अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में देखो आप, ये आपको दिख रहा है कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिख रही होगी, ठीक है। वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल में आप यहाँ पे देखेंगे लीनियर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ पे ओ से लेकर सी तक का जो आप देख रहे हो ये है टी, मतलब टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गॉट इट? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली आपकी बॉडी मूव कर रही है 0 से लेकर a तक, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, और o से लेकर के e तक की इनिशियल वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल नहीं फाइनल वेलोसिटी। सो सी बी और ओ ई इज इक्वल, बिकॉज हियर वी कैन सी कि यहाँ पे आपका जो फिगर बन रहा है वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल वाला बन रहा है। तो यहाँ से ये दोनों साइड्स आर इक्वल और ये दोनों साइड्स ए डी और ओ सी आर इक्वल। तो ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू टी आप लिखेंगे, और ओ ए इज इक्वल्स ओ ई इज इक्वल्स टू बी सी आप लिखेंगे v, और ओ ए इज इक्वल्स टू सी डी आप लिखेंगे u। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी बॉडी यहाँ तक कवर की, और उसके बाद आप देख रहे हो कि वो कितनी फाइनल वेलोसिटी तक गई है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बता रहा है आपको। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये बी सी है, अगर अब मैंने u बता दिया, u मतलब ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सी डी के भी इक्वल है, v मतलब बी सी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्राफ आपको क्या बता रहा है, जो बी सी है वो बी डी प्लस डी सी का कॉम्बिनेशन है, एडिशन है, ठीक है। तो बी डी प्लस डी सी आप देख रहे हो, ठीक है। तो बी सी मतलब पूरा क्या हो गया v, है ना, और बी डी क्या है आपको नहीं पता, तो ये लिखा आपने बी डी लिख दिया, यहाँ प्लस लिख दिया। सी डी किसके इक्वल है, ओ के, ओ ए के, तो ये लिख दिया, सी डी के बदले आपने लिख दिया ओ ए। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, v इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वैल्यू आपके आ गई, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आप स्लोप देख रहे हो, ये पूरा स्लोप है, ये ना चेंज इन वेलोसिटी आपको दिखा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी दिखा रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन विल बी बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। ये आपका थीटा बन गया। तो बी डी अपॉन ए डी, और ए डी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, ठीक है। ए डी किसके और इक्वल है, ए सी के इक्वल है। कहाँ है ए सी, ये रहा ए सी इस तरफ, ठीक है। बी डी इज इक्वल्स टू ओ सी, बी डी विल बी इक्वल्स टू ए डी विल बी इक्वल्स टू ए से लेकर डी तक के किसके इक्वल है, ओ से लेकर सी तक के, ठीक है। ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल है, टाइम टी के। तो ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू टाइम टी, ठीक है। तो बी डी क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 क्या बताती है कि ये क्या हो गया आपका a और इंटू टी। अब बी डी क्या था आपके पास, ये, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और 2, जब दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलता है, बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू था, ठीक है, और बी डी इज इक्वल्स टू ए टी भी हो गया। तो क्या हो गया दोनों इक्वेशन, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, क्यों, क्योंकि दोनों ही बी डी के इक्वल हैं, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो u प्लस ए टी, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हुआ, सॉल्व हो गया। गॉट इट? तो ये था आपका सॉल्यूशन। अब आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो और इस वे से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बहुत सारे वेज हैं, 2-3 वेज हैं, जैसे भी आप करेंगे आपका आंसर डेफिनेटली राइट जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ए, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ लाइन
ए एक्सेलरेशन ए बी है, ए स्लोप ऑफ लाइन क्या बता रहा है, बी डी अपॉन ए डी। बी डी आपको पता है क्या था, ए डी आपके पास पता हुआ, ए डी इज इक्वल टू ओ सी, वो टी था आपके पास और आगे आपका पास आंसर। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब आपने इक्वेट किया तो आपका आंसर फाइनली आ गया है। ठीक है, ये कैलकुलस मेथड है, ये मैं इग्नोर करूँगी क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है जो आपके उसमें है ही नहीं, किसमें, सिलेबस में। लेट्स गो फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बता रहा है कि इसमें सेम वेरिएबल्स को यूज़ करना है फॉर द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एल्जेब्रिक मेथड से यूज़ कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है कि नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, अब वेलोसिटी में क्या है आपके पास, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी अपॉन 2 प्लस 2, ये एवरेज है ना पूरा, इनटू टी। ठीक, अब इनिशियल प्लस फाइनल की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये आपका डी है, डी को डिनोट कर रहे हैं हम एस से, हमेशा से ही, है ना, एस से डिनोट किए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो यू है, जो यू है वो तो यू है, जो वी है वो क्या है, यू प्लस ए टी है। कैसे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, इनटू टी कर दिए यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, 2u के नीचे भी 2 है और प्लस ए टी के नीचे भी 2 है, क्योंकि ये 2 जो है वो होल अपॉन 2 है, तो u प्लस यू 2u होता है, 2u के नीचे भी u, सॉरी टी 2 और ए टी के नीचे भी 2, और इसको कर दिया आपने इंटू टी, ये 2 कैंसिल, तो s क्या आ गया, s इज इक्वल्स टू हाफ, तो है ये आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या लिख दीजिए आप, इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही बात है, आप ये लिखे तो ज़्यादा बेटर है, ये आप लिखिए ही मत, ये आप लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो बचा है वो क्या है, ऐसा ही कुछ है, u, देखिए ये स्टेप मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए लिख देती हूँ। आपके पास बचा क्या है आपके उसमें, s इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, तो t u से मल्टीप्लाई हुआ, u t हुआ, t a t से मल्टीप्लाई हुआ, a t स्क्वायर हुआ, हाफ तो नीचे है, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एल्जेब्रिक वे में। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड से। अब इसको ग्राफ को देखिए, वही ग्राफ है, सिंपल सेम ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, अगर आप इसमें देख रहे हैं आपको 2 फिगर मिल रहे हैं, एक फर्स्ट फिगर ट्रायंगल है, दूसरा फिगर रेक्टेंगल है कि नहीं है, या आप फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल को ले लीजिए, दूसरा फिगर ट्रायंगल को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस ही तो करना है, क्योंकि इस पूरे फिगर में आपको देखना है कि बॉडी कैसे डिस्प्लेस हुई है, कितना डिस्प्लेस हुई है इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक। तो क्या हुआ, आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी देखा, एस देखा, तो आपने देखा कि ये पूरा कवर की है रेक्टेंगल की एरिया और फिर ट्रायंगल की एरिया। रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, और ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, अब इसकी लेंथ आप देख सकते हो, इसकी लेंथ क्या है, OC या AD ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, और ब्रेथ क्या है इसकी, OA या BD ले लो। ठीक है, OA या BD, मेरे ख्याल से OA OC ये सब आपको पता है। OA कितना है, U है, O से लेकर A तक U है, O से लेकर C तक क्या है आपका, T है। ठीक है, B से लेकर D तक क्या है आपके पास, V माइनस U है। ठीक है, BD का वैल्यू यही आएगी आपकी। ठीक है, V माइनस U। ठीक, तो अब आपके पास क्या क्या बचा, आप देख लीजिए, V माइनस यू किसके इक्वल होता है, देखिए V माइनस यू हमेशा ही AT के इक्वल होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखेंगे ना, V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT है। ठीक है, तो U आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो V माइनस यू जहाँ पे भी आप देखेंगे उसमें AT रख देंगे। गॉट इट, है ना। तो ये अब चलते हैं अब आगे, तो आपके पास हो गया ये BD, फिर प्लस करेंगे क्या, हाफ AT, ये तो बेस था, बेस इंटू हाइट ट्रायंगल के लिए। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का। मैं यहाँ पे ना करके अगर मैं फिर से इसको रीअरेंज करूँ, पहले मैं रेक्टेंगल की एरिया लिखूँगी, फिर मैं ट्रायंगल की एरिया लिखूँगी, फिर सॉल्व करूँगी। गॉट इट, तो रेक्टेंगल की एरिया है आपके पास OA इंटू OC प्लस हाफ AD, ये आपके पास क्या है, बेस इंटू हाइट BD। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए, OA की वैल्यू क्या है आपके पास, U इंटू OC की वैल्यू क्या है, T प्लस हाफ AD की वैल्यू क्या है आपके पास, T, अगेन
ए डी, टी भी टी ही तो है, और बी डी आपके पास क्या है, वी माइनस यू मतलब ए टी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एस है, ठीक। तो आपने क्या किया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, देख लीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर है कि नहीं, हो गया आपका ग्राफ से सॉल्व। तो ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करिए, सब समझ में आ जाएगा। एल्जेब्रिक मेथड में क्या कर रहे हो आप, सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हो और सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको ग्राफ देखना पड़ रहा है कि ओ ए क्या है, ओ सी क्या है, बी डी क्या है, बी सी क्या है, ए टी क्या है, सब देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हो, इसलिए ग्राफिकल मेथड है, और एल्जेब्रा में तो आप जैसे ही फॉर्मूले बेस्ड जा रहे हो आपको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। अब आते हैं, ये एक और वे है रीअरेंजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए। क्या कर रहे हैं हम कि पहले आपके पास v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या था, ए टी था। अब आपको t की वैल्यू निकालनी है ना, तो v इज इक्वल्स टू यू, v माइनस यू अपॉन टी, a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, और v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आप ट्रांसपोजिशन से ये सब ला सकते हो। तो आपके पास है क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, ये लाना है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे आप, u इंटू टी क्या है आपके पास, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, फिर से v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करो आप, तो क्या निकलेगा, आप ले आए हो यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू हाफ करेंगे, टू इंटू टू करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई और नीचे 2 मल्टीप्लाई, तो क्या निकलेगा आपका 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि u v से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2v से 2u किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, u स्क्वायर, u से, तो 2u स्क्वायर प्लस फिर ये क्या निकलेगा आपका, आप यहाँ पे 2a मिलेंगे आपको, हाफ है यहाँ पे a है, और यहाँ पे v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, ये एक 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 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास क्या नहीं मिल गया है, 2 मिल गया, दोनों तरफ 2 है ना, एक ही बार ले लीजिए, ठीक है। 2uv हाफ 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, क्यों ये आया, ये आपके पास आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर की, ये आपने यहाँ पे ये भी ले लिया, यहाँ पे s है, ये दोनों को आप इधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ए इंटू एस, 2as, ठीक है। अब इसको ओपन करो, 2uv और माइनस 2uv कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, v स्क्वायर बचा है जो प्लस में है, और माइनस यू स्क्वायर बचा है, क्योंकि माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 2u स्क्वायर विल गिव यू u स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना, आ गया है बस आपके पास, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल गई है। किससे लेके आए आप पता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ले आए हैं। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से था। अब मैं आपको और एक वे बताती हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप सबसे पहले देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था हमने, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या था, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक। अब हमको पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक, और t इज इक्वल्स टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए होगा। इसी को यहाँ रखिए आप, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पे आपके पास s है, ठीक है। ये 2as को आप इधर 2as एक साथ हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस है ना, ये इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या निकला, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ये हो गया आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो इस तरह से आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एल्जेब्रिक मेथड में किया। अब इट्स अप टू यू कि आप इसको पहले वाले मेथड से यूज़ कर रहे हैं कि इस वाले मेथड से, टोटली अप टू यू। अब करते हैं हम मोशन ऑफ ग्राफिकल, दिस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वो कैसे, अब आपको फिर से ग्राफ देखना है, ध्यान से देखिए, सेम ग्राफ है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो इस ग्राफ में आप देख क्या रहे हो, अगेन OA BC के इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी है, और ये अगेन AD और OC T के इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आपने क्या किया, वही अगेन S इज इक्वल्स टू, अब आपको दो फिगर्स नहीं दिखने हैं, अब इस पूरे फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, कौन सा ट्रेपेजियम, ऐसे वाला, ठीक है, जहाँ पे फिर से 2 पैरेलल लाइन्स है और एक हाइट है, ठीक है। तो ये सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट,
ठीक है, ये है आपका। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन कौन सी पैरेलल साइड्स आ रही हैं देख लो आप, OA प्लस BC, ठीक है, और हाइट क्या है आपकी OC या AD, OC ले लो, जो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हाफ OA कितना है आपका U, BC कितना है आपका V और OC कितना है T। अब इस T की वैल्यू आप पहली इक्वेशन से ले आओगे, वही वाली पहली इक्वेशन जिसमें क्या था V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, तो T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A, इसी को आपको लेना है, ठीक है, किसमें T के बदले। तो ये हो गया U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। अब यहाँ पे आपके पास तो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 2AS हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा V प्लस U और V माइनस U। ये क्या है, A प्लस B, A माइनस B विल गिव यू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपनी प्लेस में, U स्क्वायर प्लस हो गया और 2AS तो ऑलरेडी प्लस में था। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी बार मज़ा आएगा। तो आई होप कि आपको सारे मेथड एल्जेब्रिक, सारी इक्वेशन एल्जेब्रिक और ग्राफिकल दोनों मेथड से समझ में आ चुकी है। ये है जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है। सारे प्रीवियस लेवल में आपने देखा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो रिजल्टिंग फोर्स जो एक्ट हो रहा है उस बॉडी में वो चेंज हो रहा है विद टाइम और पोजिशन, है कि नहीं। फिर एक्सेलरेशन हमेशा से कांस्टेंट नहीं रह सकता, तो हुआ क्या, जो इक्वेशंस हैं वो भी वैलिड नहीं होती हैं। तो क्या हुआ, इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन और द वेलोसिटी फ्रॉम द एक्सेलरेशन थ्रू इंटीग्रेशन विच वाज कैलकुलेशन मेथड, वो मैंने नहीं समझाया आपको, कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो इफ़ द वेलोसिटी और पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम, as a function of time is known, then the acceleration can also be found through the differentiation। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड कैलकुलस मेथड में होगा, डिफरेंशिएशन जो फॉर्म है कैलकुलस मेथड में, जो भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे 11th-12th में जब आपने मैथ्स लिया तो डेफिनेटली वो आपको समझाया जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गए एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड से। बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। चैप्टर में एग्जाम में ज़रूर आता है, ये ज़रूर आता है। पहला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन टाइम ग्राफ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पोजीशन एंड वेलोसिटी ग्राफ के नाम से भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, और आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बने रहिएगा। बहुत सारा कुछ मैं आपके सामने फिर से लेके आऊँगी, और तब तक के लिए अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर बहुत बार देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच, लाइक जरूर करिएगा। तो हैव अ नाइस डे, डोंट बॉदर योर पेरेंट्स एंड बी continuing with the studies, ठीक है, be continue, because now you are going to do many more things, because it's like the long period, after long period of pandemic you are going to schools, so there will be so much of burden, tension, don't bother about that, because now I actually believe कि अगर आपने continuous practice की तो आपको कुछ भी bother नहीं करेगा, ठीक है। Thank you so much, have a nice day।